गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय के अंदर मैथ लैब एक्टिविटी की फाइल लगती है और आप सभी उसमें प्रैक्टिकल करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सीबीएसई ने इसे क्लास 12 तक कंपलसरी कर दिया है। मैथ लैब एक्टिविटी के क्या क्या एडवांटेज है, आज थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस बिकॉज मैथमेटिक्स नॉलेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट लाइक साइंस, सोशल साइंस, इवन म्यूजिक एंड आर्ट एटसेट्रा। विदाउट मैथमेटिक्स कैन नॉट इमेजिन वी फाइंड नंबर, shape, measurement, money and time. Its concept more clear, we need math lab because math lab tool make math a playful experience. Math activity is mainly focused on student who find math disinterested, boring and dull. For these students, it is a challenge to face the world full of numbers in day-to-day life. Math lab activity makes these students more interesting, remove math phobia, and excel in their math activity. This learning perception is different within practical, experimental and activity base. This will make student to remember the math concept for long term in his permanent brain memory. Because mathematics laboratory is a place where anybody can experiment and explore patterns and ideas. It is a place where we can find a collection of games, puzzles, and other teaching and learning methods. The Math Lab provides an opportunity for these students to discover mathematics through doing. Mathematics activity help the student to build interest and confidence in the learning mathematics. It provides opportunity to exhibit the relativeness of mathematics concept with even day life. It provides together scope for individual participation in the process of learning and becomes autonomous learner. The need and requirement of learning experiences are always flexible. A resourceful teacher should not always look to confine the practical experiences in the mathematics to the four walls of a classroom, but broaden her student horizon and fun. Such means is by meaning mathematics laboratory and do activity. So, in the simple word, the advantage of mathematics activity is: number 1, help to create interest of the student. Number 2, it help in making use of all the progressive method of mathematics. Number 3, it help in the conclusion of scientific problem solving method. Number 4, the theoretical concept may be easily classified through practical demonstration. Number 5, it will be help in training the student for the practical application of mathematics facts and principle in their life. Number 6, it will be help in satisfying the creative and constructive user of student. So,
Activity in mathematics is very important role teacher and student because it go permanent brain memory. Today we do activity linear equation in two variable. जब हम मैथमेटिक्स की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो मैथमेटिक्स एक्टिविटी करने में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव, कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड नंबर पे आता है प्रीरिक्विजिट नॉलेज, किस ऑब्जेक्ट के बारे में हमारी नॉलेज क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है मटेरियल रिक्वायर्ड्स। चौथे नंबर पे आता है प्रोसीजर, कि उसमें हम कौन कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। पांचवें नंबर पे आता है डिमोन्स्ट्रेशन। छठे नंबर पे आएगा ऑब्जर्वेशन और सातवें नंबर पे आएगा रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। तो एक्टिविटी में सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीरिक्विजिट नॉलेज, तो इसमें हमें हमारे पास में क्या है, नॉलेज ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे नॉलेज ऑफ ड्राइंग का क्या होगा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर जो इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। इसके ग्राफ हमने क्या किया, 9th क्लास में ड्रॉ किए हैं, 8th क्लास में ड्रॉ किए हैं। तीसरे नंबर पर आता है मटेरियल रिक्वायर्ड्स। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आएगा हमारे पास में ग्राफ पेपर आएगा, पेंसिल आएगा, इरेजर आएगा, कार्डबोर्ड आएगी, ग्लू आएगा और बहुत सारी इस तरह के हमारे और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। चौथे नंबर पे इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है, टेक ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन द फॉर्म। किस फॉर्म में लेकर चलेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 a2 b2 एंड c1 c2 आर ऑल रियल नंबर्स। a1 b1 एंड a2 एंड b2 आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। वी हैव 3 केस। तो केस नंबर 1 है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अर्थात हमें जो इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन हमारी पहले वाली है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें, दोनों इक्वेशन को ऐसा बनाएंगे कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 और फिर इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर दूसरे वाले में है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है हमारे पास में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, कि हम इस तरह की दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस। थर्ड नंबर पर आएगा केस क्या हो गया, थर्ड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गया b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या हो गया, c1 अपॉन c2। किसमें जो लाइन्स होंगी वो कैसे होंगी, कौन साइड्स होंगी, अर्थात एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी और उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे हम, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन वैल्यू को क्या करेंगे, टेबल्स के अंदर रखेंगे और वैल्यू को टेबल के अंदर रखने के बाद में फिर इसके बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।